Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu, 16th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about these editorials. Actually, not editorials, they are small articles or the news cuttings which are in the today's newspaper. One is regarding the eradication of the polio, and they're talking about the vaccination as well. Second, the CRISPR genetic editing tool, India and UAE, parasite with respect to the prelims and a main question. See, I know today is Sunday. I'm troubling you for to watch this video, the newspaper video. But still, you all are UPSC aspirants, and there is no Sunday for us. So I expect everyone to be consistent on this journey because Sunday is not fun day. There are important news editorials with respect to your GS paper 3, which is the part of science and technology. All right. So mostly आज की जो भी discussions होंगी वो GS paper 3 के होंगे, science and technology and biotechnology. So before starting the discussion, as always, please subscribe my channel and like and share so that we could help you, we could provide you all the news updates on time. Now let us begin. जो न्यूज़पेपर है उसमें बोला गया है कि पोलियो का जो इरेडिकेशन हुआ है क्या वो रियल में इरेडिकेशन हुआ है इंडिया में बिकॉज अभी भी जो केसेस है वो आ रहे हैं बट दैट केसेस आर नॉट रिलेटेड टू द वाइल्ड पोलियो दैट केसेस आर रिलेटेड टू द ओरल वैक्सीनेशन so should we stop the oral vaccination for the polio or not? But the debate on this is it's like a different matter. Firstly, have a clarity on what is polio disease, what kind of a disease is this, what is vaccination. Alright? So from the basics, from the zero, let's begin. Firstly, if I talk about disease, we can classify the disease in two parts. One is the congenital diseases and second is the non-congenital diseases. Please don't get scared of these words. I know the UPSC exam is a generalized exam. It includes all the subjects, and whenever the words from bio come, we get scared. These are very easy words. Keep repeating it. You'll feel very easy to learn them. See, co and Jenny. That means जीन की यहाँ पे बात कर रहा है तो वो डिजीज जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द जीन or due to an issue in the gene. So those are your congenital diseases and non-congenital diseases are those which are acquired throughout our lifetime. Alright. And this can be further classified as infectious disease and non-infectious disease. When we talk about the non-infectious, I am assuming you all should know now about the diabetes mellitus because ये न्यूज़पेपर में था काफी टाइम से that the cases of diabetes mellitus, a non-congenital, non-communicable disease is increasing in India and we had discussed about it. बट आज का जो डिस्कशन है वो पोलियो का है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है तो पोलियो माइलेटिस इज द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज बट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो डिजीज है ये क्लासिफिकेशन में कहाँ आता है बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशंस विच यू should keep in your mind if you want to solve the prelims question. Now, coming to the polio देखो पोलियो सिर्फ यहाँ लिखा है बट इसका पूरा जो नाम है वो है पोलियो माइलेटिस. If I talk about this disease, mostly this disease occur in the small children. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा होती है या तो आपकी जान चली जाएगी या फिर कुछ डिसेबिलिटी आपको होगी so that is the reason WHO, so this definition is as per the World Health Organization, which has defined the polio as either a life-threatening disease or a disabling disease. And yes, if it is caused by a virus,
then it must be an infectious disease. That means it would get transferred from one person to the another person. And ultimately it affects your nervous system. That is the reason यहाँ पे पैरालिसिस भी होता है किसी किसी लोगों में. And we say that the polio is resulting either in the symptoms जो कि पैरालिटिक symptoms होते हैं या फिर नॉन पैरालिटिक symptoms. क्लियर? ना कॉजल, आपके जो मसल्स होंगी वहां पे ये इन्फेक्शन करेगा. आपके जो बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ये इन्फेक्ट करेगा और आपको अल्टीमेटली पैरालिसिस हो सकता है, विच इज ऑफ वेरी हाई केसेस. और a body organ specific, that your leg is not, you are not able to move your leg, you're not able to move your hand, so organ specific paralysis could be seen over here. तो अगर ये वायरस है, देखो ध्यान से सुनो, हमने वायरस टोमेटो के केस में भी डिस्कस किया था कि अगर ये कोई वायरस है, that means if this virus is present in the environment, it must be in the non-living form, correct? And it needed a transmitting agent. Okay, it needed a transmitting agent to survive or to replicate. And in how he will be getting it to enter in the host material. मतलब होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इस जेनेटिक मटेरियल को ये यूज करेगा और अपनी जो नंबर है उसको ये मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है जी. अब ये कैसे करता है? सबसे पहले जो वायरस है उसको देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एस एस और आरएनए. एस स्टैंड्स फॉर सिंगल स्टैंडर्ड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. जब भी हम जेनेटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे इस पूरी साइंस एंड टेक सीरीज के अंदर, खैर तो ये तो करंट अफेयर्स की न्यूज है, बट वेन एवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट द साइंस एंड टेक, तो जेनेटिक मटेरियल या तो आपके पास डीएनए होता है या आपके पास आरएनए होता है. In case of virus, mostly, generally, you will find the RNA as a genetic material. What is this DNA? What is this RNA? कुछ नहीं है, ये है आपके पास डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो यहाँ पे एक बहुत केमिकल स्ट्रक्चर है, बायोटेक में हम पढ़ेंगे. फॉर नाउ दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए. If I talk about single stranded and double stranded, ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो सिर्फ दो धागों की तरह होता है, सो वी कॉल इट एज अ डबल स्टैंडर्ड. इस वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड, so that means a structure which is of a single thread like structure. क्लियर? तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल. अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कुछ इस तरह से सिंगल धागे की तरह पड़ा होगा और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम कैप्सिड भी बोल सकते हैं. ये जो कैप्सिड है वो चार अलग अलग तरह की मटेरियल की प्रेजेंट होती है. अगर ये टाइप 1 टाइप 2 तरह से इनके नाम है, तो यू विल हैव अ वायरस नोन एज अ VP1 वायरस और द VP1 पोलियो बिकॉज इट इज infected with a VP1 virus. Then you will have a VP2, VP3 and VP4. If we talk about these 2 and 3, they are totally eradicated in India. अब यहाँ से हम लिंक करेंगे न्यूज को, बट ये क्लियर होना चाहिए कि वो पोलियो जो ऐसे वायरस से हो रहा है जिसका जेनेटिक मटेरियल में आपके पास प्रोटीन कोड VP2 और VP3 की है, इसीलिए वो पोलियो का नाम भी पड़ गया VP2 और VP3. दे आर इरेडिकेटेड, दैट इज टाइप VP2 and 3, दे आर इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. और VP1 अभी भी कुछ पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा. इरेडिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत साल हो गए कि कुछ इसके केसेस हमें देखने को नहीं मिले, सो वी से कि ओके नाउ दिस इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. If we talk about incubation, अगर आप नॉन पैरालिटिक हो यानी पैरालिसिस नहीं हुआ है, कुछ और नॉर्मल सिम्टम्स है, तो 3 to 6, एंड इफ यू आर पैरालिटिक देन 7 to 21 सिम्टम्स. मोस्टली पैरालिसिस होता है या फिर सिक भी हो सकता है. दीज आर 7 सिम्टम्स. अब आता है इंपॉर्टेंट बात कि इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है कि हम आपको इस तरह से ठीक कर दें. यस,
वैक्सीनेशन से तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको पोलियो होए ही नहीं, that you do not get infected by polio, but there is no cure of this disease. I am reiterating this time that there is no cure of this disease. Only vaccination could cure, sorry, could prevent you from this disease. That is only immunization could cure. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? कि आपको आपकी बॉडी में इम्यून, देखो यहाँ पे समझेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, तो एक होता है नेचुरल इम्यूनिटी जो कि बाई बर्थ आपके पास प्रेजेंट होती है, जैसे स्किन पे हेयर्स होते हैं, आई पे आपके आई लैशेस होती है, एनी ओपनिंग ऑफ योर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल द नोज, वहां पे कुछ म्यूकस जैसे सीक्रेटेड सब्सटेंस होता है, तो दे एक्ट लाइक अ फिजिकल बैरियर। बट ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जैसे ये स्किन हेयर से किससे बचा रहे, हवा से, मिट्टी से, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, so they are physical barriers but they are generalized। फिर आपके पास होता है कुछ स्पेसिफिक जो कि हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, वो स्पेसिफिक होती है। अब वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है? एक तो वैक्सीनेशन होती है कि मान लो कि ये जो पोलियोमाइलिटिस का वायरस है, इसको मार के, इसको किल करके, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मार दिया जाता है, इसको किल किया जाता है और ये हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू। तो हमारी बॉडी, तो ये हो गया आपके पास एंटीजन। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाता है, और ये जैसे ही हम खाते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स दो सब्सटेंसेस विच एक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है, देखो एक होता है एंटीजन और एक होगा आपके पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दैट इज एंटी मीन्स अगेंस्ट, बॉडी मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो काम करता है वो होता है आपके पास एंटीबॉडी। तो व्हेन यू पुट दिस द डेड, यू नो, द किल्ड वायरस इन द बॉडी, तो आपकी बॉडी इसके खिलाफ कुछ इम्यूनिटी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई सेल्स प्रोड्यूस करती होगी, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती होगी। तो रियल में जब आपके पास ये वायरस आएगा तो आपकी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, क्योंकि एक बार ये उसको मार चुकी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुकी है। This is the complete in the chapter of immunity. If you want to have a detailed discussion on these, please write down in the current comment section. We can make a detailed video about the immunization. So this is how our body recognized the virus, polio virus, because when it was, entered in our body with the help of vaccine, our body produced antibody, a killed virus was entered in our body, hence our body produced antibody against it. So vaccines are of two types. One is the inactivated polio virus and second is the oral polio virus, जिसमें हम पूरी तरह से उसको मारते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको हम समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले इंडिया का एक सिनेरियो देख लेते हैं कि जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसका आखिरी केस हमने देखा था 2011 में, और इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने 2014 में पोलियो फ्री का सर्टिफिकेशन जो है इंडिया को दे दिया। ये अचीवमेंट इतना अच्छा था कि पोलियो का पल्स पोलियो कैंपेन भी हुआ टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम कमिंग टू इंडिया, क्योंकि कुछ हिस्सों में हमने देखा कि पाकिस्तान में है ये केस टाइप 1 का, अफगानिस्तान में भी है, कि कोई भी सिटीजन या कोई भी पर्सन इंडिया से ट्रैवल कर रहा है बाहर जहाँ पे पोलियो के केसेस है, उनको मैंडेटरी था ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। अब हम बैकग्राउंड को समझेंगे, अब जो न्यूज है वो आपको समझ आएगी। 1988 में डब्ल्यूएचओ ने कमिट किया था कि 2000 तक ग्लोबली जो है पोलियो का इरेडिकेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ साल बाद ही, यानी कि 1993 में ही उन्होंने अपना जो गोल है उसको चेंज कर दिया और बोले कि 2000 तक हम लोग जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसको इरेडिकेट कर रहे हैं वैक्सीन की वजह से, यानी कि जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के केसेस है उसको हम हमारे टारगेट में इंक्लूड नहीं कर रहे। आई रिपीट, इनिशियली 1988 के अंदर WHO committed that we will eradicate the global polio cases by 2000, but later they changed their objective that by 2000, yes, we will eradicate the wild polio virus, polio disease, but not the vaccine derived or the vaccine associated
पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, यानी कि वैक्सीन देने की वजह से जो पोलियो को केसेस आ रहे हैं उसको इरेडिकेट हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इरेडिकेशन के लिस्ट में नहीं है। वी आर जस्ट इरेडिकेटिंग जो नेचुरली पोलियो वायरस के इन्फेक्शन से हो रहा है, वाइल्ड पोलियो वायरस जो है उसको इरेडिकेट करने की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कारण क्या है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस है, वो तो इसको खत्म करने का तरीका ये यूज कर रही है कि यूजिंग द ओरल पोलियो वैक्सीन, और इससे बहुत सारे केसेस भी आए हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो सीधा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यूज कर रहे हैं, इट्स इजी फॉर दैम। तो वैक्सीन का डिलेमा समझो, हमने क्या बोला कि जो टाइप 2 है, फोकस हियर, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये इरेडिकेट हो चुकी है इंडिया के अंदर, ठीक है। 2015 के बाद हमने कोई केस इसके नहीं देखे। 2015 में इट वाज डिक्लेयर्ड फ्रॉम इंडिया कि ये इरेडिकेट हो चुकी है। बट इंडिया में फिर टॉक कि वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो वायरस, पोलियो के केसेस है, वो टाइप 2 की वजह से ही हो रहा है 90%। सेम थिंग टाइप 3 इरेडिकेट हो चुकी है, बट 40% यहाँ पे भी आपको वैक्सीन एसोसिएटेड जो पैरालाइटिक पोलियो वाले जो केसेस है वो यहाँ पे दिखेंगे। तो ये तो भारी कंसर्न हुआ ना, और ये अनएथिकल भी हुआ कि आपका जो पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है उसमें आप कह रहे हो कि हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है, लेकिन आपने कभी भी डेटा में वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो पैरालाइटिक के केसेस को नहीं शो किया, करेक्ट। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो काउंट भी नहीं करती है कि कितने केसेस जो है इन वैक्सीन डिराइव्ड केसेस है, क्योंकि उनको लगता है दे से दैट द इट्स नॉट दैट मच थ्रेटनिंग, दैट मच the cases are so sporadic, they are not so much dangerous or threatening. So this is the concerning, बिकॉज ध्यान से देखो कि जो वैक्सीन एसोसिएटेड वाले जो केस है वो बढ़ रहे हैं 1998 से 2013 में बढ़ रहे, जबकि इरेडिकेशन के लिए आप बोल रहे हो तो इरेडिकेट हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। और 2004 से 14 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट दी गई है। डिस्पाइट इंडिया नॉट मेंटेनिंग द रिपोर्ट, अगर हम केसेस देखें तो 181 केसेस थे 1999 में, 129 इन 2000 एंड 109 इन 2001 रिस्पेक्टिवली। तो फिर क्या हुआ कि ये जो टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस है बीइंग इरेडिकेटेड एंड टाइप 2 पोलियो केसेस बीइंग वैक्सीन derived, there was a global switch from trivalent to bivalent in 2016 ताकि ये कम हो जाए, बट स्टिल ये इनिशिएटिव के बाद भी नंबर्स में इंक्रीज हो रहे। तो दिस इज द न्यूज ऑल अबाउट कि what they want to say. They are just saying that at one side you are saying कि पोलियो के जो केसेस है वो इरेडिकेट हो चुके हैं, बट यू आर नॉट काउंटिंग द केसेस विच आर वैक्सीन derived, करेक्ट। नाउ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जीन क्या है, यू मस्ट नो व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, व्हाट इज आरएनए, करेक्ट। व्हाट इज दिस वैक्सीनेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनिटी का जो टी सेल और बी सेल होता है उसमें भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। So this is your homework. What is B cell with respect to immunity? What is T cells with respect to immunity? Okay. Now coming to the next topic, that is genome editing. एक बहुत ही छोटू सा एक न्यूज दे रखा है साइंस टेक पोर्शन में, राइट साइड ऑफ द न्यूज़पेपर, which is talking about the genome editing. Actually, they are talking about the CRISPR gene, that is Cas9 as a genetic editing tool. ठीक है, इस पूरे टॉपिक को समझते हैं कि व्हाट इज जीनोमिक एडिटिंग एंड व्हाट इज दिस क्रिस्पर जीन। So when I talk about the genome editing, it is also known as gene editing or genetic engineering. So it is a group of technologies that give scientists the ability to change an organism's DNA. बहुत ही भारी definition. हाँ, focus here. If there is any organism, उसका कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि कैरी कर रहा होगा जीन्स। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे कैरी द जीन। व्हाट आर जीन? जीन आर योर हेरिडिटरी यूनिट्स which
get transmitted from one generation to the next generation. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बेबी इज बोर्न, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हिज आईज और हर आईज आर सिमिलर टू हर फादर, मदर, नाना, दादा, दादी. दैट मीन्स कोई ना कोई जीन तो है जो प्रीवियस जनरेशन से अभी तक कैरी ऑन होते हुए आ रहे हैं. So those genes, so we can say genes are the hereditary units which get transferred from one generation, sorry, to the next generation. ठीक है. लेकिन अब इमेजिन करो कि कोई बर्थ हुआ है और इसमें किसी पर्सन की जो आईज है वो डिफेक्टिव, दे आर नॉट एबल टू सी बाय बर्थ, दे आर नॉट एबल टू वॉक बाय बर्थ. तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर हो जाता है साइंस की तरफ, कि साइंस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही है, डिजीज को रोक ही नहीं पा रही है जो कि बाय बर्थ हो रही है, उस बच्चे का पूरा लाइफ खराब हो रहा है. So in such cases, what we technology is there that is known as genome editing, कि आप किसी भी इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आप एल्टर कर सकते हो. When I say alter, that means I can change it. How I can change it? या तो मैं इस पर्टिकुलर जीन को रिमूव कर दूं, यानी मैं निकाल दूं, या मैं यहाँ पे कोई नया जीन ऐड कर दूं, या मैं उसका कुछ एल्टरेशन कर दूं. कुल मिला के पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, रिमूव कर दिया, ऐड कर दिया, कुछ नया डाल दिया. तो ये हो गई इसकी एक तरह से इंजीनियरिंग. और इंजीनियरिंग हम कर किसकी रहे हैं? जीन की कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो टेक्निक हुई वो क्या बोला जाएगा? जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग. डेफिनेशन क्लियर है? ओके. दिस इज नोन एज जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है. और जीन एडिटिंग, यू कैन से बहुत सारे आप नाम जो इसमें सुन सकते. अब होता क्या है, एक और टर्म हम सुनते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, लिखा हुआ तो पढ़ लीजिए. ओके. there's someone writing on the recombinant DNA टेक्नोलॉजी. ये क्या है इसको आप समझोगे. देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, उसी का एक पार्ट है आपके पास द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. देखो, ये है पर्सन, this person is suffering from diabetes. Why I'm repeating the example of diabetes always these days? Because it is in the newspapers. You must know about diabetes. इनको चाहिए डायबिटीज, इनको हो गया डायबिटीज. So doctor has suggested that this person should be injected with a insulin hormone. अब इंसुलिन हार्मोन इनकी बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही. इंसुलिन हार्मोन का सोर्स क्या है? पेनक्रियाज ऑफ द ह्यूमन बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म. तो यानी आपको किसी और की बॉडी से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करना होगा और डायबिटिक पेशेंट में डालना होगा. आई रिपीट, दैट मीन्स आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंसुलिन हार्मोन फ्रॉम अदर बॉडी and I have to insert this insulin hormone in a diabetic patient via injection. तो ये आप लेने का काम कैसे कर रहे हो? इट इज हैपनिंग बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. कैसे? इफ आई से कि ये तो आपके पास पर्सन ए थे जो डायबिटीज पेशेंट है, इनके अंदर आपको इंसर्ट करना है, ये तो होस्ट है आपके. ठीक है. ये क्या हो गया? होस्ट हो गया कि जो भी हम आगे टेक्निक कर रहे हैं उससे जो नया डीएनए बनाएंगे जिसमें इंसुलिन होगा वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. तो ये हमारे होस्ट हुए. फिर हम ले रहे हैं एक दूसरा ऑर्गेनिज्म, जिनका ये है ऑर्गेनिज्म बी, इंसान दूसरा. इसके पेनक्रियास में जो बी सेट है वहां से मैंने लिया इनका जो डीएनए है, डीएनए का वो पोर्शन मैंने कट कर लिया जो कि क्या बना रहा था? इंसुलिन हार्मोन बना रहा था. प्लीज फोकस हियर. दूसरा जो सोर्स है मेरा, वहां से मैंने क्या ले लिया? इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है ले लिया. ले लिया मतलब मोलिकुलर सिस्टर, काटा उसको. ये कैंची से नहीं कटता, इट्स लाइक अ मोलिकुलर सिस्टर, उससे काटा और ये मैंने सेपरेट कर लिया. उसको मैंने जोड़ दिया एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड के साथ. मतलब ये प्लाज्मिड काम नहीं आएगा. प्लाज्मिड क्या होता है? क्रोमोसोम ही होता है, बट वो एक्स्ट्रा होता है जिसके साथ मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे जोड़ दिया. तो ये जो एक नया चीज बना, ये हो गया नया डीएनए. दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नया रिकॉम्बिनेशन करके आपने एक डीएनए बनाया
और इसको आप इंसर्ट कर दोगे डायबिटिक पेशेंट में। तो दिस इज हाउ अ टेक्नोलॉजी इज डन विच इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका रिकॉम्बिनेंट जो है टेक्नोलॉजी उसी का पार्ट है। एंड ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी, दैट इंक्लूड्स द जीएस पेपर 3। और वो जो मॉलिक्यूलर सिसर है वही आपके पास क्रिस्पर कैस 9 है। तो ये इसलिए लिखा है यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो टूल काम आ रहा है दैट इज दिस। ये शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एंड क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन है। ये फास्टली काम करता है, चीपर है, मोर एक्यूरेट है। ओके, एंड ये काम आ सकता है जैसे कि कैंसर की पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। हमने जो डायबिटीज का एग्जाम्पल लिया, HIV, correct? Now coming to the next topic, that visit of Prime Minister of India to UAE, that is United Arab Emirates. You can see this is the map of this country, right? So France से लौट, देखो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में गए, irrespective of the condition that France was burning, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे because the police killed a small teenage boy for they are saying there's a story they misbehaving and racial discrimination और many stories are there। तो उसके बावजूद फ्रांस जो है हमारे पीएम गए और वहां पे उनको एक लेजेंड ऑफ द ओनर से अवार्ड भी किया। हाईएस्ट जो उनका ओनर होता है, अवार्ड होता है, वो मोदी जी को वहां पे दिया गया। और ये हमने वीडियो में लास्ट में डिस्कस भी किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद वहां से लौटने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो आते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, और वहां पे इन्होंने दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पहला, दोनों कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक थी, इंडिया की तरफ से आरबीआई और उनकी तरफ से जो उनका सेंट्रल बैंक है, दे हैव साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दोनों कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो जो ट्रांजेक्शन है वो लोकल करेंसी में हो सकता है। यानी इंडिया का जो है वो रुपी में हो सकता है और यूएई की जो लोकल करेंसी है उसका ट्रांजेक्शन हमारे इधर हो सकता है। ना होमवर्क क्या है? यूएई की जो करेंसी आपको पता लगा के आना। इससे क्या होगा? अब इंडियन रुपी जो हमारी लोकल करेंसी है वो गल्फ रीजन में इंक्रीज हो जाएगी, और ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के लिए। क्यों? अगर पूरा ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में होता है तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द यूएस एज इट वाज पावरफुल, बट नाउ इसका पावर धीरे धीरे कम जाते हुए दिख रहा है बिकॉज चाइना इज अबाउट टू सरपास एज पर सम रिपोर्ट्स। इसका केस आप रशिया में देख सकते हो। रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसमें इंडिया वॉज न्यूट्रल, बट रशिया ने हिस्ट्री में इंडिया के बहुत सपोर्ट किया था, और इंडिया ने अभी क्या किया एज अ रिस्पॉन्स, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट किया सस्ते दामों पे। लेकिन आप इसका पेमेंट कैसे करोगे? आप क्या आप डॉलर में करोगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूएस ने तो सैंक्शन लगा रखे हैं यहाँ पे, आप नहीं कर सकते। इंडियन रुपी में करोगे, नहीं सस्टेनेबल है सर। रशिया का इंडियन रुपी काम कहाँ आएगा? क्योंकि इंडियन रुपी जो है फुल्ली कन्वर्टेबल है ही नहीं कैपिटली। देयर आर टू कॉन्सेप्ट, द फुल्ली कन्वर्टेबल ऑफ द करेंसी। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आपको, इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो इंडियन रुपी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल, तो रशिया के वो काम नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली इंडिया इज फोर्स टू पे रशिया इन द करेंसी ऑफ युआन, जो कि चाइना की करेंसी है। इंडिया चाइना की बनो ना बनो, लेकिन उसको एक डिपेंडेंसी हो गई जियो पॉलिटिक्स, और उसको ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। तो दिस इज द रीजन कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के इस बार का जो प्रेसिडेंसी है क्लाइमेट चेंज को लेके, इट इज अंडर यूएई, तो क्लाइमेट चेंज पे भी काफी जो डिस्कशन थे वो यहाँ पे देखने को मिले। फिर एक प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक टॉपिक है, बहुत ही छोटू सा डेफिनेशन कह सकते हो कि पैरासाइट क्या होते हैं। तो पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपना जो खाना है वो उस पर निर्भर होते हैं, यानी कि दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, so this is it for today, and the question is, first of all, देखो प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं साइंस से रिलेटेड, दैट Cas9 term is often seen in the news, it is related to what? Option A, a molecular scissor
used in targeting the gene editing, a biosensor used in accurate detection of pathogens in the patients, gene that makes plants pest resistant, none of the above. इसका आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ अ मेन क्वेश्चन, राइट or discuss the future of India. Okay, I'm just repeating it. You just jot it down. I'm just telling you orally. Okay, I should write. So you can write a means question over here that discuss the future of India at the global platform with respect to genetic or gene editing technology. 250 words. Okay. So this is it for today. If you like the video, please subscribe it, please share it, like and share, and we will meet soon. Thank you so much.